लाइक मैंने खुद भी डीएसएल को स्टार्ट किया, बट देन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं थी, तो मुझे लगा कि फॉर एन अकाउंटेबिलिटी फैक्टर आई शुड एनरोल इफ देयर इज अ कोचिंग फॉर दिस दिस ऑल दीज स्किल्स और नॉट। तो मैं काफी चीजों के साथ गया एंड देन आई केम अक्रॉस ट्यूटॉट। सो हे एवरीवन, टुडे वी आर हैविंग आविष्कार विद अस। तो यार बहुत टाइम से हम इस पॉडकास्ट के लिए वेट कर रहे थे, एंड इन दिस पॉडकास्ट वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस अबाउट कि वीएमवेयर में जो एमटीएस पोजीशन है उसका रोल क्या रहता है, इनको कैसे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, डीएसए में इनका क्या रोल है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को हम अगर क्रैक करने का सोचते हैं तो हाउ वी कैन डू इट, एंड एडवाइस फ्रॉम हिम साइड, his side, right? So a lot of things we have to cover in this special podcast. So without further ado, let's get started. So hi Avishkar, how are you? Hey, hi Chirag, I'm doing great. How are you? I'm amazing as well. Really excited for this podcast. So the first thing that I wanted to ask is, okay, first let's. I have given a brief introduction about you, but you can give Yes. the best introduction for yourself to the audience. So first, let's make audience comfortable. So it will be great if you can introduce yourself. Okay. So, hi everyone. This is Avishkar Dalvi. So should I give a like a technical or professional introduction? So I would say that I've completed like 5 years of more than 5 years of experience as of now. I started my career as a Java developer with Accenture. I was there for 3 years, and I also worked on Salesforce, Apex. I was exploring things, but till then, like, I was not sure whether I will continue as a software developer or not. I was exploring in life other options as well. Then I moved to a startup called TrueMeds. It was an e-pharmacy, and TrueMeds onwards I became a full stack developer, front end, back end, both. And I worked in TrueMeds for some amount of time, and then I got an offer from a product based company, which was John Deere. So I moved to John Deere, and even in John Deere my role was full stack. And since I became full stack, I became React heavy or front end heavy. So like till then I had worked with a service based MNC, an early stage startup, plus a product based MNC. And now my next goal was like, I was really enjoying my time at Deere, and everything was great, but it's just that I wanted to crack a product based company which ships software, or a tech company to be exact. Because when you work at a tech company, or the people in the tech company, then you can say that, okay, as a software developer I have reached a certain stage in my life. And then I got this opportunity from VMware, and here I am as an MTS3. Okay. So a lot of things has happened throughout your journey, और एक चीज आपने मेंशन Yes. करी कि आपने अर्ली स्टेज स्टार्टअप में भी काम कर रखा है, अभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप काम कर ही रहे हो, और सर्विस बेस्ड कंपनी में भी आपने काम कर रखा है। तो Yes. एज यू हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द थ्री थिंग्स, तो एक चीज जो सबके दिमाग में आती है, जो मैं ही आपसे अभी पूछने वाला हूँ, कि आपका Hmm. एक्सपीरियंस तीनों स्पेसिफिक में कैसा रहा, एंड व्हाट आर द डिफिकल्ट, क्योंकि हर चीज के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट? तो Correct. Correct. वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि कुछ में कुछ अच्छा या फिर कुछ ऐसी चीजें जो Yes. आपको लगता है कि वी कैन इम्प्रूव, सो व्हाट आर योर Yeah. थॉट्स ऑन दैट? सो आई थिंक कि हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. यू एंजॉय सर्टन थिंग्स इन अ सर्विस बेस्ड एमएनसी. स्टार्टअप के कुछ अलग प्रोज है, और एट द सेम टाइम कॉन्स भी है. और सिमिलरली लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड के उतने प्रोज एंड कॉन्स नहीं है, टू बी ऑनेस्ट. मतलब इट्स मोर ऑन द पॉजिटिव साइड अदर देन हैविंग अ कॉन. तो आई गेस सर्विस बेस्ड में इट टोटली डिपेंड्स विच प्रोजेक्ट यू आर स्टाफ्ड इनटू, व्हाट टेक्नोलॉजी दे गिव यू. बिकॉज अगर वो तुम्हें कॉलेज से हायर करते हैं या फ्रेशर हायर करते हैं, तो आपके पास चॉइस नहीं होती कि आप जावा में रहोगे, या आप एसएपी में जाओगे, या हम्म। किसी भी टेक्नोलॉजी में जाओगे. इट्स टोटली रैंडम. दे पुट यू इनटू बैचेस, राइट? एंड उसके बाद भी आपको प्रोजेक्ट कैसा मिलेगा, इफ यू आर लकी यू माइट गेट अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वेर इन यू एक्चुअली डू सम इंजीनियरिंग वर्क. अदरवाइज तो आप फंस जाओगे किसी सपोर्ट प्रोजेक्ट में, टिकट्स देखते रहोगे, शिफ्ट्स में काम करोगे, और बेसिकली आपकी कोई लाइफ नहीं होगी. ऐसा मुझे लगता था, बिकॉज आई हैव वर्कड इन, लाइक, जब मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट, पहले दो प्रोजेक्ट वर डेवलपमेंट, बट उसके बाद मैं एक सपोर्ट प्रोजेक्ट में भी था. एंड एट द सेम टाइम आप क्लाइंट के हिसाब से आपका वर्क टाइमिंग होता है, तो यू डोंट हैव मच कंट्रोल ऑन योर लाइफ. बट सम पीपल एंजॉय इट, आई डिडंट. ओके, एंड इन और द केस ऑफ इफ स्टार्टअप्स? स्टार्टअप मैं कहूंगा, आई थिंक मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप फ्रेशर हो,
या आप अर्ली स्टेज में हो, तो एटलीस्ट 1 साल या 2 साल तो आप लोग अर्ली स्टेज स्टार्टअप में या किसी भी स्टार्टअप में गुजार लो। अगर आपको हायर एजुकेशन वगैरह नहीं करनी, आई वुड कंसिडर बीइंग इन अ स्टार्टअप, अ डेवलपमेंट फोकस स्टार्टअप एज योर मास्टर्स, अ मास्टर्स इन विच यू गेट पेड एज वेल। सो आई थिंक दैट्स अ बिग प्रो। हाँ, ये बात है कि आप स्टार्टअप की लाइफस्टाइल, अगर आपका एग्रेसिव स्टार्टअप है तो आप ज्यादा दिन तक वो सस्टेन नहीं कर पाओगे, बट एक अर्ली स्टेज करियर में एक पेड इंटर्नशिप समझ के या एक मास्टर्स प्रोग्राम समझ के आप उसमें घुस जाओ। मैं तो एटलीस्ट 1 या 1.5 साल तो निकाल ही लो। आपका बाकी के रास्ते बहुत खुल जाएंगे और आपका माइंड भी बहुत खुल जाएगा। आप बिजनेस को काफी नजदीक से देखोगे और आपके काम का इम्पैक्ट आपको दिखेगा। मतलब ये चीज मैं थोड़ा और जानना चाहूंगा बिकॉज आई एम हम्म। ऑल्सो गोइंग टू सिट फॉर प्लेसमेंट्स इन फ्यू मंथ्स, राइट? हम्म। And currently I'm in a situation in which I'm just a door away from getting an intern in a startup, right? So its name ओके। is Electric Pay, if you have heard about it. So ओके। recently they have got a 3 million fundraising, right? ओके। So हम्म। I'm just going in that, and somehow when you get intern in a startup or something like that, so हम्म। something goes behind in your mind. Okay, if I'm doing intern, there's a high chance that I can go there full time as well, right? And you said that करेक्ट। in करेक्ट। starting 1 or 1.5 year, you should work in a startup. It explores यस। many ways, और बहुत सारे हाँ। रास्ते खुल जाते हैं। वो कैसे, मतलब मैं हम्म। ये जानना चाहूंगा। क्योंकि ना आपके पास काफी ओनरशिप आती है, एट द सेम टाइम काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और स्टार्टअप्स में यूजुअली प्रोसेसेस इतने डिफाइंड नहीं होते, केओस बहुत ज्यादा होता है। बट वो एक कॉन है, बट उसमें एडवांटेज एक है कि यू टेक योर ओन डिसीजंस। यू माइट इवन गेट टू लीड अ टीम। लाइक मैं बहुत जूनियर था, बट मुझे टीम लीड करने का मौका मिला बिकॉज ऑफ बीइंग इन अ स्टार्टअप। मुझे हायरिंग में इन्वॉल्व किया गया, मैंने काफी इंटरव्यूज लिए, जबकि मेरे एक्सपीरियंस के लोग नहीं होते हायरिंग प्रोसेस में। तो यू विल एक्सप्लोर अ लॉट, और आपको एक्चुअली लाइक आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे, बट आपको आपकी लिमिट्स, आपके कंफर्ट जोन काफी एक्सपांड हो जाएगा। इफ हाँ, इट्स अ गुड एंड डेव फोकस स्टार्टअप, लाइक उसमें अच्छा डेव वर्क है तो, एग्जैक्टली। एंड एंड यू गेट टू वेयर डिफरेंट हैट्स। और आप फ्रंट एंड बैक एंड आप चाहे जहां घुसो और काम करो, आप गूगल करके सोल्यूशन लाओ, एक्सप्लेन करो, उन्हें पसंद आए तो यू कैन इम्प्लीमेंट इट। सो इट्स लाइक मतलब आप बहुत चीजें करोगे जो यूजुअली आप किसी एमएनसी में रहोगे ना, आपका रोल बहुत डिफाइंड रहेगा, स्पेशली इन अ सर्विस बेस्ड एमएनसी। एग्जैक्टली, और मतलब जॉब करोगे वो आपको डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होते हुए भी दिखता है मोस्टली। दिखेगा, बुरा या अच्छा दोनों तरीके होते हैं। अच्छा हुआ तो तुरंत फीडबैक मिलता है, और बुरा हुआ तो भी फीडबैक मिलता है, बट इमीडिएट इम्पैक्ट दिखता है। एग्जैक्टली। आपको मीनिंग मिलेगा आपके काम में जो वहां पे पता नहीं चलेगा। हाँ, और द थर्ड थिंग दैट वी हैव डिस्कस कि अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा प्रोडक्ट बेस्ड का एक्सपीरियंस तो बेहतर ही रहा है दोनों जगह से, बिकॉज प्रोडक्ट बेस्ड में एटलीस्ट जितना अभी तक मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आपको आपकी बहुत वैल्यू है एज एन एम्प्लॉय। लाइक यू आर नॉट जस्ट अनदर ब्रिक इन द वॉल। आपकी एक वैल्यू होती है, आपका ओपिनियन भी सुना जाता है, और काफी इफ अगर आप में अच्छा डेवलपमेंट वर्क है उस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, तो यू विल फॉलो ऑल द बेस्ट स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस दैट आर बीइंग फॉलोड थ्रू आउट द इंडस्ट्री। तो उससे आप बहुत अलग तरीके से ग्रूम होके निकलोगे। लाइक व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यू अगेन इन द मार्केट, आपको बहुत चीजें पता होगी, या ऐसा होगा कि आप बेटर प्रोसेसेस में वर्क कर चुके हो और आप वो कल्चर कहीं और लेके जाओगे। सेकेंडली, लाइक आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, एट द सेम टाइम आपका काम भी अच्छा रहेगा, काम भी अच्छा मिलेगा। सो देर इज अ परफेक्ट बैलेंस देयर। बट एक बात है, अगर सब अच्छा हो तो आप काफी कंफर्टेबल भी हो सकते हो, तो वो आपको होने नहीं देना। लाइक यू विल प्लस प्रोडक्ट बेस में ना आपकी लर्निंग पे भी काफी फोकस होता है। दे हैव बजट फॉर एम्प्लॉइज सो दैट यू लर्न एंड यू एनरोल इनटू डिफरेंट कोर्सेज, एंड दे एनकरेज दैट। लाइक दे एक्चुअली एनकरेज यू टू सेल्फ स्टडी। वो खुद बोलते हैं कि यू शुड नॉट वर्क ऑल द टाइम, आप खुद की डेवलपमेंट भी करो, एट द सेम टाइम आप आपकी बाकी लाइफ पे भी फोकस करो। तो वो एक अच्छा फैक्टर, काफी अच्छा फैक्टर है। बट एट मतलब पहले 1-2 साल तो आपको वो फील नहीं होगा, बिकॉज आप वो काफी जवान, मतलब जवान खून की तरह आपको सब करना होगा। बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास बर्नआउट आएगा ही आएगा, बिकॉज एवरीबडी इज ह्यूमन, एंड हम थकते हैं एक पॉइंट के एग्जैक्टली, बाद। तो आपको बैलेंस चाहिए। राइट। तो अब जैसे आपने तीनों चीज एक्सप्लोर कर रखी है, तो क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड इज दैट हाउ यू स्विच्ड बिटवीन दीज काइंड ऑफ कंपनीज, के ऑफर अपने आप आ रहे थे या फिर यू हैव टू अप्लाई, और व्हाट्स द बेसिक थिंग दैट बिकॉज
all the people they are preparing for it or they are just starting, एक क्वेश्चन दिमाग में रहता है कि अगर मुझे स्विच करना है बड़ी कंपनीज के लिए, ऑब्वियसली इफ यू आर ग्रोइंग यू विल गो टुवर्ड्स द बिगर साइड ओनली. तो राइट. कैसे स्विच करते हैं, कैसे अपॉर्चुनिटीज आती है या अवेल करना होता है? आई थिंक सो कि देखो, जब भी मैं एक्सेंचर में एक पॉइंट के बाद जब भी मुझे प्रोजेक्ट्स लाइक सपोर्ट प्रोजेक्ट्स एंड उसमें डाला गया था, तो इट इज लाइक मेरा काफी टाइम वहां पे मतलब वेस्ट हुआ ऐसा बोल सकते हैं, बट दैट वाज द मोटिवेशन फॉर मी टू गेट आउट ऑफ देयर, राइट. बट मेरे काफी तभी मेरी मुझे इंटरव्यूज का इतना नॉलेज नहीं था, तो मेरा कुछ क्रैक भी नहीं होता था. बट यूजुअली इट्स थ्रू द जनरल प्लेटफॉर्म, जैसे सबसे कॉमन तो Naukri.com है, राइट. तो इन सारे जनरल प्लेटफॉर्म से हाईरेस्ट है, कट शॉर्ट है, तो एनीथिंग एंड अगर आप एग्रेसिवली देख रहे हो तो एनीथिंग एंड एनीवेयर यू सी यू, प्लस अगर आपने अपडेट कर दिया तो यू ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग कॉल्स फ्रॉम देयर. तो इनिशियली तो ये कॉल्स मुझे वैसे ही आई है, बट आई डोंट रिमेम्बर कि मैं कौन से मीडियम के थ्रू गया हूँ या दे हैव रीच मी, बट यूजुअली दिस इज थ्रू रिक्रूटर कॉल्स. Okay. And when further for VMware we talk or about the startup, so through LinkedIn or something or some you applied for the interview because VMware is a product based company. So product based company का राइट. भी रहता है या फिर for that you have to apply through LinkedIn जो अलग अलग पोस्ट आती है या आपकी यू प्रोफाइल देख के कैन. उन्होंने? So there are multiple ways actually. You can apply through LinkedIn. आप referral के through जाओ, या you go through their career page and directly apply, or they themselves might notice you and they approach to you. तो मेरे साथ तीनों चीजें हुई है, but VMware के केस में I remember मुझे स्पेसिफिकली एक रिक्रूटर का कॉल आया था एंड आई वाज So ऑन नोटिस we बिकॉज have मुझे discussed एक all your ऑलरेडी journey. ऑफर आ गया So था. how एंड Tutor देन उसके Academy बाद मैं नोटिस basically पीरियड पे था, helped you in मिडवे this? मुझे VMware का Yeah. रिक्रूटर का कॉल So आया एंड जब आई सेड मैं यस बिकॉज डियर में था ऑब्वियसली तो यू विल मेरा से नो लाइक इफ यू गेट आई एन वाज नॉट अपॉर्चुनिटी कि टू मुझे इंटरव्यू इन सच एन इमीडिएटली स्विच ऑर्गेनाइजेशन. करना है, बट मेरा ये एग्जैक्टली, एम था कि एग्जैक्टली. यहाँ से मैं आगे जाऊंगा तो आई विल गो इनटू अ टेक टेक कंपनी. सो और टेक कंपनी के मैं जाने के लिए क्या क्या चीजें लगती है इसका मैं इंफॉर्मेशन निकालता रहा था इंटरनेट पे, यूट्यूब से एंड ऑल. तो मुझे पता चला कि यू नीड बेसिक थिंग्स लाइक डीएसएल को आपका स्ट्रांग होना चाहिए. आप जो प्रोजेक्ट में काम करते हो वो आपको एक्सप्लेन करने आना चाहिए, प्लस आपके जो रेलेवेंट स्किल्स है उसमें आपके पास एक लेवल की एक्सपर्टीज होनी चाहिए. एंड थर्डली, टू सम एक्सटेंट जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, बट टू सम एक्सटेंट हर जगह पे लो लेवल एंड हाई लेवल सिस्टम डिजाइन का थोड़ा हाँ बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए. एग्जैक्ट. तो फिर उसके बाद मुझे पता चला कि ये लाइक मैंने खुद भी डीएसएल को स्टार्ट किया, बट देन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं थी. तो मुझे लगा कि फॉर एन अकाउंटेबिलिटी फैक्टर आई शुड एनरोल इफ देयर इज अ कोचिंग फॉर दिस ऑल दीज स्किल्स और नॉट. तो मैं काफी चीजों के साथ गया एंड देन आई केम अक्रॉस ट्यूटॉट. आई थिंक मैं कोरा के थ्रू मुझे ट्यूटॉट का पता चला था. सो उसके बाद आई ट्राइड कॉन्टेक्टिंग देम और मैंने उनसे बात की. मुझे थोड़ा कन्विंसिंग लगा, फिर भी लाइक आई टुक 2 days टू सॉर्ट ऑल थिंग्स आउट एंड देन आई सेड लेट्स गो फॉर दिस, बिकॉज इनका बैच साइज भी कम था. तो दैट वाज द मेन फैक्टर फॉर डिसाइडिंग कि मतलब अगर इफ इट्स नॉट एन 100 स्टूडेंट बैच, इट्स लाइक अ 14 or 20 स्टूडेंट बैच, You सो get यू गेट attention टू towards your इंटरैक्ट point. मोर. Yes, यस. exactly. सो बेसिकली उनकी हेल्प से आपने डीएसए और बेसिक डेवलपमेंट तो आपका चल ही रहा था, डीएसए यस. उसकी हेल्प से पॉलिश करा और बेसिक सीएस फंडामेंटल्स, एंड आफ्टर करेक्ट. दैट यू सेट फॉर द इंटरव्यूज ऑफ ऑल द कंपनीज, राइट? यस. यस. एग्जैक्टली. तो आपके पर्सपेक्टिव से हाउ मच इम्पोर्टेंट इज डीएसए? It is important if you want to go into mainstream big organizations. Startups के लिए उतना important नहीं है. And there are certain organizations that make exceptions in interviews, but 80% of the time you will need it if you are aiming for the big guns. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. एंड Yes. एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट के you have worked in all the all the types of companies that we are having, either Yes. we call Yes. startup, service based or product based. उन तीनों का Yes. एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, how Tutor Academy helped you. Now the case is that कि वर्किंग एक्सपीरियंस की जब बात आती है, राइट, तो वर्किंग एक्सपीरियंस की जब बात आती है तो वो आपका कैसा रहा है सब में? मतलब वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. तो द थिंग दैट आई वांट टू आस्क इज दैट कि कैसा वहां पे काम करना रहता है, राइट? क्योंकि ये Hmm. एक चीज जो आपने बोली कि अगर हम सर्विस बेस्ड कंपनी में जाते हैं तो वहां पे हमें अलग अलग, आई एम नॉट श्योर अबाउट द वर्ड, दैट अलग अलग प्रोजेक्ट्स असाइंड होते हैं, राइट? Yes. स्टार्टअप में Yes. जाते हैं देयर इज वेरी एग्रेसिव कल्चर देयर, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में Correct. जाते हैं तो वहां पे
kind of work culture is something like that you get relaxed, right? कि मतलब Yes. obviously you have some work but इतना लोड नहीं रहता है. तो अगर उसमें हम डिटेल में बात करें उन तीनों के लिए, तो उसमें क्या Hmm. आपका व्यू रहेगा? Obviously, मतलब मैं तो कहूंगा कि eventually always aim for being in a product based organization. That too, if possible, go for something which is tech driven. Because अगर आप, if you are a software engineer and you are building a software that is used by other people, nothing like it. But हाँ ये है कि they you get to work with best people on best things, following the best standard practices. तो उनको देख के या उनके साथ रह के आपका भी लेवल बढ़ जाता है. So that is one advantage that I saw in a product based company. और यहाँ पे आपको काम पे ही फोकस करना पड़ता है, बाकी चीजों पे फोकस नहीं करना पड़ता, और बाकी डिस्ट्रैक्शंस या नेगेटिविटी कम होती है या नहीं, ऑलमोस्ट नहीं होती है. दैट यू माइट एक्सपीरियंस इन अ सर्विस बेस्ड कंपनी और अ स्टार्टअप. एग्जैक्टली जो वर्क कल्चर जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत बिकॉज ज्यादा सपोर्टिव होता है, आपके कलीग्स भी आपको सपोर्ट करेंगे, एंड इवन दे वांट यू टू लर्न, एंड दे, इवन इफ यू आर अ जूनियर, दे स्टिल वांट टू लर्न फ्रॉम यू. एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती है, तो दे आर ऑलरेडी सेटल्ड बाय देयर रूल्स इन स्पेसिफिक वर्क यस. कल्चर. और इतनी बड़ी यस. कंपनी होती है तो उनके भी मतलब खुद के जो रूल्स होते हैं दैट आर के एम्प्लॉय फ्रेंडली, और वो सारी चीजें रहती है, यस. राइट? तो स्टार्टअप एंड आई आइदर आई टॉक अबाउट एमएनसीज और आई टॉक अबाउट प्रोडक्ट बेस्ड हम्म. कंपनीज, तो उनमें हम्म. जो डिफरेंस है, दैट स्टार्टअप यू सेड दैट बहुत केओटिक रहती है, सारी चीजें बहुत एग्रेसिव रहता है. नॉट ऑल स्टार्टअप्स, बट जैसे मैंने जिस स्टार्टअप में काम किया, दैट वाज एन अर्ली स्टेज स्टार्टअप, बहुत छोटा टीम था. तो यू विल एक्सपीरियंस इट. फिर वो दे वेंट इनटू अ फंडिंग, और फंडिंग आने के बाद और वो एग्रेसिव हो जाता है यूजुअली. बट देर आर सम गुड, लाइक आई हैव हर्ड दैट मीशो इज क्वाइट ग्रेट. आई मीन अभी तो यूनिकॉर्न है, बट मतलब नॉट ऑल स्टार्टअप्स आर लाइक दैट, बट अर्ली स्टेज में यूजुअली यस. So you said the term unicorn. So for our audience that does not that do not know, so can you please explain the term unicorn for them? So I think unicorn is like, if your startup starts growing and eventually it is valuated at 1 billion, I think then it becomes a unicorn. Then Exactly. you term it as a unicorn. बहुत ज्यादा हो जाता है वो. Yes. Okay, right. So one thing that we have discussed a lot about startups, product-based companies or service-based companies, about your journey with Tutor, right? So Hmm. anything or any part from your side that if someone is looking to switch companies between service-based Okay. to startup or to product-based company, एनी एडवाइस फ्रॉम योर साइड कि यार हम स्विच कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने कहा कि यू हैव यूज सम प्लेटफॉर्म्स और समथिंग लाइक दैट, Hmm. सो एनी Hmm. नेटवर्क कनेक्शंस और लिंक्डइन, तो कैसे हम उनको अवेल कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज? एनी एडवाइस फ्रॉम योर एंड? आई थिंक कि फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिस फील्ड में या जिस स्किल पे काम कर रहे हो ना, वन थिंग यू, इफ यू आर अ फ्रेशर और इवन इफ यू आर एक्सपीरियंस गाय, वन थिंग यू कैन डू इज कि आप उस आपको जो भी नॉलेज मिल रहा है या आप कुछ नया सीख रहे हो, ट्राई राइटिंग ब्लॉग्स फॉर दैट एंड पब्लिश देम ऑन लिंक्डइन. क्योंकि इससे ना लोग आपको नोटिस करेंगे. एंड वो जैसे हैश नोड है, देर इज dev.to, इन सब पे दिस आर स्पेसिफिकली फॉर टेक ब्लॉग्स. तो आपके कनेक्शंस अच्छे बनेंगे. यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल. डिस्कॉर्ड आप यूज कर सकते हो. यू विल मीट अ लॉट ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट. अगर आप, जैसे मैं फ्रंट एंड में भी था, तो जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है वेब पे, एंड देर आर अ लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेस या जावास्क्रिप्ट रिलेटेड बहुत कुछ होते रहता है, एंड दे आर वेरी वेलकमिंग पीपल. अभी आई डोंट नो अबाउट अदर कम्युनिटीज, बट मैंने जावास्क्रिप्ट का तो ये एक्सपीरियंस किया है. तो सिमिलरली अगर कोई पाइथन से है फॉर एग्जांपल, तो ही कैन डू दैट. और इससे आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे, एंड यू नेवर नो कि कौन आपको कब अपॉर्चुनिटी दे दे. हाँ, बिकॉज एग्जैक्टली. बिकॉज एवरीबडी इज लर्निंग एंड ग्रोइंग इन देयर लाइफ, एंड अगर इफ दे रिमेंबर यू फॉर सम रीजन और द अदर, they'll reach out to you, they'll help you out. और ऐसे भी काफी अपॉर्चुनिटीज खुलती है. तो कीप एन ओपन माइंड एंड कनेक्शंस बनाओ. नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली, नेटवर्किंग इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट? सो वी हैव हम्म. डिस्कस्ड अ लॉट, और बहुत सारी अच्छी अच्छी और फ्रूटफुल बातें करी, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि ऑडियंस को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. सो एट लास्ट, एनी एडवाइस फ्रॉम योर एंड टू द ऑडियंस, कंसिडरिंग वी हैव ऑडियंस अ होल लॉट ऑफ बिगिनर और इंटरमीडिएट, राइट? तो हम्म. एनी एडवाइस फ्रॉम योर एंड थ्रू योर जर्नी और योर एक्सपीरियंस टिल नाउ दैट यू वांट कि अगर अगर आपकी यंगर सेल्फ को वो पता होती,
तो you can हम्म। achieve this more faster, और आप कुछ मतलब हाँ, कुछ ये तो चीजें मुझे जल्दी हमेशा अचीव लगता है। कर पाता है। हाँ हाँ, ये रिग्रेट तो मेरे पास हमेशा होता है। आई थिंक ये सबके पास ही होती होगी, कि जो चीजें मुझे अभी पता चल रही है, आई विश कि मैं फ्रेशर होता तब मुझे पता चलती, सो दैट मैं जल्दी निकलता और इस स्टेज तक जल्दी पहुंचता। बट एनीवेज दैट्स लाइफ। एग्जैक्टली। बट एक ही है कि कीप एक्सप्लोरिंग थिंग्स और कीप एन ओपन माइंड। और जैसे इफ यू वांट टू एम फॉर अ टेक कंपनी, तो जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली, यू ऑल्सो कैन ट्राई गेटिंग दैट इन्फॉर्मेशन। अभी पीपल हु आर वॉचिंग द ट्यूटॉट वीडियो माइट ऑलरेडी नो कि ट्यूटॉट इज वन वे टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, राइट? एटलीस्ट डीएस एल्गो तो आपका क्लियर हो जाएगा, बिकॉज वो एग्जैक्टली। तो कॉमन पार्ट है। एंड देन यू आर अ जावा गाय और फ्रंट एंड गाय, तो आपके वो क्वेश्चन चेंज होंगे, एंड दैट विल नीड योर स्किल एक्सपर्टीज। There no one can help you, only your work experience and your curiosity can help you. But एग्जैक्टली। the 50 to 60% part is DS algo and system design questions. So that is there. Secondly, don't go into self doubt mode. मैं इस mode से जा चुका हूँ, तो like don't let the negativity get inside you. Keep believing in yourself, and things slowly or eventually they open up. So ये तो है। एग्जैक्टली। और मतलब Yeah, वी हैव हैड अ लॉट ऑफ गुड डिस्कशन, और आपने काफी एनर्जेटिक, चीयरफुल और अच्छे तरीके से सारे जवाब दिए, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये मुझे बहुत हेल्प करी, एंड ऑब्वियसली ऑडियंस को भी हेल्प करेगी। सो थैंक यू फॉर I सच hope एन I अमेजिंग। hope it helps them. I'm definitely sure that it will help them. So Okay. thank you for such an amazing session, and I wish you all the luck for all your future endeavors. Thank you. Thank you so much.